Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the basics of information technology. Here are the contents of today's lecture. In this lecture, we will going to discuss hardware, software, difference between hardware and software, data, information, data processing. First of all, we are going to discuss what is hardware. The physical parts or components of the computer that a user can see and touch are called hardware. In other words, we can say the devices that are attached to your computer are also called hardware, or the physical components that you can see or you can touch are called hardware. What are the examples of hardware? Keyboard, mouse, monitor, CPU, speaker, and other devices that are attached to your computer are the components of your computer. Now, what is software? A set of instructions given to a computer to solve a problem is called software. Basically, आप जो instructions कंप्यूटर को देते हैं उन्हें कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या काम करना है और कैसे करना है. बेसिकली कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन. अगर कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और आपके पास कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म एनी टास्क. तो आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो प्रोग्राम्स हैं, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बेसिकली कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है. अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर. आपका जो कंप्यूटर होगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाएंगी. जैसा उसमें बताया जाएगा कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, कैसे करना है, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेगा. What are the examples of computer software? Microsoft Word, InPage, VLC Media Player, etc. These are the common softwares that we are using in our daily life. Now we are going to discuss what is the relationship between hardware and software. The software is a set of instructions that tells the computer hardware what to do and how to do. इस पॉइंट के अंदर हमें पता चल रहा है कि हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या काम करना है और कैसे करना है. दैट मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर आर डिपेंडेंट ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क. द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, but software also needs hardware in order to act out its directions. अब आपका जो हार्डवेयर है उसको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी जो है वो हार्डवेयर की ज़रूरत होगी. आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो तब हेल्पफुल होंगी व्हेन यू हैव हार्डवेयर इन दैट. A computer becomes useful only when hardware and software are combined. So, we come to know that hardware and software are directly dependent on each other. If you have hardware, it won't possible for software to perform operations without hardware, and if you have hardware and you don't have any software, your computer will not be able to do the task or to perform the task. Now, what is the difference between hardware and software? We are going to discuss the hardware and software points one by one. The physical parts of the computer that causes processing of data. Basically, जिनके ज़रिए आपकी कंप्यूटर के डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है वो आपके पास फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर होते हैं. एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. When we are talking about hardware, hardware can be seen and touched as compared to the software. When we are talking about software, the software cannot be touched.
हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. And when we are talking about software, it cannot be executed without hardware. Software hardware के बगैर execute नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम नहीं चला सकते. Hardware repaired in case of problem and software will be debugged in case of problem. Now what's the difference in that? हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका, क्योंकि वो फिज़िकल डिवाइस होगी, कोई कंपोनेंट होगा, तो आप उसको रिपेयर करेंगे. लेकिन सॉफ्टवेयर आपके पास प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उन्हें डीबग करेंगे. डीबग का मतलब होता है एरर्स को डिटेक्ट करना. बग इज़ बेसिकली एरर, और यू कैन से any type of problem that occur in the software. So when you debug the software, it will detect the problem and solve that problem. हार्डवेयर रिप्लेस्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड. अगर आपकी जो भी हार्डवेयर डिवाइस है जो अटैच्ड है आपके सिस्टम के साथ, और उसका आप रिपेयर उसको नहीं कर सके, देन यू कैन रिप्लेस दैट डिवाइस और दैट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. When we are talking about software, it will be reinstalled if the problem is not solved. अगर आपने उसको debug किया है, error detect कर लिया है, but you won't be able to solve it, or you want remove it, so you can reinstall the problem to solve that problem. That was the basic difference between hardware and software. Now we are going to discuss what is data. Data is a collection of raw facts and figure is called data. Basically जो आप डाटा कलेक्ट करते हो वो रॉ फॉर्म में होता है. रॉ मीन्स अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा. जब डाटा के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं की गई है, वो आपके पास जो है वो रॉ है अभी तक, और वो आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको अभी सिर्फ आपने कलेक्ट किया है. दे आर नॉट organized, they are not in specific order or sequence when they are collected. It is meaningless क्योंकि वो आपका रॉ डाटा है. अभी आपने उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए हैं, ना वो किसी सीक्वेंस के अंदर है, ना वो किसी ऑर्डर में है. इनिशियली आपका जो रॉ डाटा होगा, जो आपके रॉ नंबर्स होंगे, जो आपके रॉ लेटर्स होंगे, वो मीनिंगलेस हैं. अभी वो आपके किसी काम के नहीं हैं. अभी वो आपको कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. डेटा इज़ गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. अब उस डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी होगी, और वो प्रोसेसिंग कब परफॉर्म होगी? जब आप अपना डाटा कंप्यूटर को देंगे. कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा और उस डाटा को मीनिंगफुल बनाएगा, ताकि आपके जो भी टास्क हैं उनको परफॉर्म किया जा सके, आपकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके. डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अब आपका जो डाटा है उसको आप डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हो, और फिर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने एक डाटा कलेक्ट कर लिया है और आप उसको सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. उस एक कलेक्टेड डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. डाटा में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब आपके पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में होगा, डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो देख लेते हैं हम. आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, वी हैव टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो. Text means we are talking about alphabets or letters. The numbers include 0 to 9 digits. Image will include pictures, and audio will include sound, music, and video includes the visual recording of your images that you can see, and they also contain audio as well. So these are the different types that are in data. These are data could be in any form. Now what is the example of data? डाटा आपके पास, डाटा की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास. हर ऑर्गेनाइजेशन का
अपना डाटा होता है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके उस डाटा को मीनिंगफुल बना लेते हैं अपने लिए। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज की, तो उनके पास जो डाटा होगा वो स्टूडेंट्स का डाटा होगा बेसिकली। और जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो दैट डाटा मस्ट रिलेट टू योर पेशेंट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स एंड देन that means we are talking about account holders record and so on। अगर यहाँ पर जो उन्होंने एग्जांपल ली हुई है डाटा की, वो कह रहे हैं जी द स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज, कि स्टूडेंट ने एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है जब वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। तो द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। फॉर्म के अंदर जो भी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप, उस वो रॉ फैक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्रोसेस्ड। आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की हुई, आपने जस्ट उनसे डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स आपने यूज़र्स स्टूडेंट से ले लिया है, और अभी आपके लिए वो मीनिंगफुल भी नहीं है, आपने उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए हैं। रॉ का वर्ड इंडिकेट कर रहा है दैट योर डाटा इज़ नॉट मीनिंगफुल, इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज़ नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। These raw facts are students' name, father name, address, etc. आपके जो रॉ फैक्ट्स हैं, लेट सपोज आप क्या फॉर्म में स्टूडेंट से फिल करवा सकते हैं, स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, ये सारे आप उनसे यूज़र से या स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट दीज आर नॉट प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। आपके रॉ फैक्ट्स हैं ये, अभी तक इनके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हुई, आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, आपके किसी काम नहीं आ रहे हैं ये भी। द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने ये डाटा क्यों कलेक्ट किया है? ताकि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। इफ़ दैट स्टूडेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास उसका डाटा होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका क्या उसकी हॉबीज़ हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी रॉ डाटा है, बट इट विल provide information when you process this data. Now we are talking about what is information. The processed form of data is called information. Initially we have talked about data. The data is unprocessed form. When we process the data, it will become information. अब जब डाटा रॉ डाटा था उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म की, अब जो डाटा आपके पास आ गया है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन है, वो आपका मीनिंगफुल डाटा है। इट इज़ मीनिंगफुल देन डाटा। डाटा आपके पास मीनिंगलेस था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, सीक्वेंस में नहीं था, रॉ था, यू जस्ट हैव नंबर्स एंड लेटर्स। बट नाउ व्हेन यू process that data, it will become information and it will be meaningful than data. It is used for making important decisions. Data, using data you won't be able to make important decisions because you don't have any kind of output or any kind of information, because that data was not processed. But when we are on this stage, we have processed the data, we got the information, now we can make important decisions. Data can be processed in different ways to produce the required information. ये बहुत important point है। Data को आप process कर सकते हो different ways में। एक डाटा से आप एक किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप एक डाटा को डिफरेंट टाइप्स में प्रोसेस करके, डिफरेंट वेज़ में प्रोसेस करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। And information can be reproduced again and again easily by performing operations on data, different operations on data according to your need or your requirement. Okay, what is the example of information? The data collected from census is used to generate different types of information. The government can use it to determine the literacy rate in the country, and the government can use the information in important decisions to improve a literacy rate.
डाटा अगर आपने कलेक्ट किया है, लेट्स सपोज किसी मरदमशुमारी की बात करें हम, ठीक है, तो उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं आप। वी हैव टू सिनेरियोज हेयर। हमारे पास एक ही डाटा जो हमने सेंसस से जनरेट किया, मरदमशुमारी से लिया है, ठीक है, और हम उससे क्या दो काम कर रहे हैं, हमारी दो अलग अलग इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। ना फर्स्ट वन, द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। पहला काम, गवर्नमेंट उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या इन्फॉर्मेशन गेट करिए, लिटरेसी रेट चेक करिए कि कंट्री में लिटरेसी रेट क्या है। नाउ व्हाट विल बी द सेकंड थिंग, the government can cause the information in important decisions to improve literacy rate। अब दूसरा काम गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करे, उसी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है अपने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए। पहला काम, डाटा सेंसस सिर्फ एक आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब उस डाटा के ऊपर दो डिफरेंट वेज़ में आप काम कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो और दो डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो। तो पहली क्या है कि आप गवर्नमेंट चेक करी है कि लिटरेसी रेट क्या चल रहा है कंट्री में। दूसरा, वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं कि हाउ दे कैन इम्प्रूव द लिटरेसी रेट। So information is dependent on data. If you have no data, that means you won't be able to get any information, and if you have correct form of data, then you will definitely get the correct form of information after processing. Now we are going to discuss what is a data processing। अभी हम बात करें कि डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं and we will get the information। Now what is basically data processing? The process of converting data into information is called data processing। जब आप डाटा को कन्वर्ट कर देते हो इंफॉर्मेशन के अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को आप कहते हो डाटा प्रोसेसिंग। क्या आपने डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की है, ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, वो डाटा अब आपके पास किस फॉर्म में आ गया, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ गया। द डाटा इज़ द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट। द मेन पॉइंट और द की पॉइंट of data processing is that data will be your input. Data is anything that is given to your computer, and information is anything that you can get from the computer. So in data is your input, and when you perform operations on data, you will get the information that will be your output or your result or your meaningful data. It is also known as computing। जब आप डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कंप्यूटिंग समथिंग, यू आर कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा बाय परफॉर्मिंग सम operations on that data. What are the basic steps of data processing? Data that is in the form of input, you can process the data or the computer will process the data and produces a result or the information that is meaningful data, which is also called output. What is the example of data processing? The addition process can be performed on the marks obtained by a student in different subjects. This process add the marks and provide टोटल मार्क्स। आपने स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और उनको आपस में ऐड करना है और चेक करना है कि आपके टोटल मार्क्स स्टूडेंट के क्या हैं। सो वी हैव अ सिनेरियो हेयर, व्हेन वी हैव मार्क्स like English 80, Math 95, Computer 76. This is your data, raw data, unprocessed form of data, that you have collected the marks of the students in different subjects. What you need to do, you have to add these to get the total marks. To add these means you are going to process it. Process what? Process on data, a raw data that contain numbers. Now what are these numbers? 80, 95 and 76. You are going to add three numbers, 80 plus 95 plus 76. When you are adding these three numbers, that means you are performing processing on that. This is called data processing. When you will get the result after data processing, it will be the information. And what is the information in this case or in this scenario? Information is
total marks is equals to 251. That will be the result, that will be the output that you can get by performing some operations on your data. So we are done with our basics of information technology.